Hello, kids. Tomorrow is your English exam. Did anyone ever tell you the checklist? So, here I am again. I'm sure my Marathi video has helped a number of children. So, this is my last minute revision advice for you. First of all, take out your English textbook, people. Have you ever gone through these pages? What are the topics of grammar and who decides what is it? From where do you understand what you need to learn? Here it is. It is on some of the pages, like, come on, let me turn the pages and show you where exactly it is. This is your first page. Turn, and then turn. This is very crucial page, and from here you have to learn the letters, sounds, consonant, vowel, alphabetical order, phonetic symbols. Then you have to learn the parts of speech. In noun you have to learn the types of noun. Types of noun are proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, material noun. Apart from that, you also need to have an idea about countable and uncountable noun. Let me remind you that you have to use the article a or an with the countable nouns only. You can't use them with uncountable nouns. Uncountable nouns like water, air, everything, maybe sugar, whatever you weigh and bring, don't use a or an with them. You can maximum use the, or most probably you don't use any article at all with them. Then you have to know some singular, plural and irregular plural rules. So one important thing which I would like to recall is that the rule for the words ending in y, okay, if a word ends in y and a vowel precedes it, you only add s to make it plural, like boy becomes boys. But if it is a consonant that precedes it, then you have to remove the y and add ies. For example, story, story becomes stories. Then you have to know the common and the proper noun as well, concrete and abstract noun, that I already told you. Auxiliary verbs or modal verbs. Auxiliary verbs, primary auxiliary verbs are is, am, are, was, were, and these are called the forms of verb to be. Yes, they are called the forms of verb to be. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ब्रैकेट में दिया है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी, तो आपको इज, एम, आर, वॉज, वर यूज़ करने का फुल फ्रीडम है. विल बी, शैल बी भी आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हो. इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट इतना जल्दी नहीं आता, उस एप्लीकेशन में आता है. तो आपको फाइनाइट नॉन फाइनाइट का मतलब अगर जानना है तो टेंस मार्क्ड एंड नॉन टेंस मार्क्ड वर्ब्स है. कभी कभी बोलते हैं, हाँ, कभी कभी वो लोग पूछते हैं आपको कि ट्रांसिटिव वर्ब्स ढूंढिए और इंट्रांसिटिव वर्ब्स ढूंढिए. तब आप क्या करोगे? जिसमें टेंस पता चलता हो वो ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, जिसमें टेंस नहीं पता चलता वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं. तो जैसे कि इन्फिनिटिव्स और जेरेंड्स होते हैं ना गाइस, वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं क्योंकि वो हर एक टेंस में यूज़ किए जा सकते हैं. टू ईट, आई लव टू ईट, आई लव्ड टू ईट, आई विल लव टू ईट, है ना. स्विमिंग इज़ माई हॉबी, स्विमिंग वॉज माई हॉबी एंड स्विमिंग विल बी माई हॉबी. सो ing वर्ब्स और टू बी वर्ब्स इंट्रांसिटिव वर्ब्स हैं. अगर वो लोग आपको बोलते हैं पिक आउट द इंट्रांसिटिव वर्ब, तो अब आप देख लीजिए इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं. एक बहुत सिंपल वर्ड के लिए इन्फिनिटिव टर्म कॉइन किया जाता है. बहुत बच्चे लिख नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं इन्फिनिटिव क्या है. तो इन्फिनिटिव कुछ नहीं है, वर्ब के बेस रूट में टू लगाना होता है. टू सिंग, टू गो, टू कम, टू डांस एक्सेट्रा सब कुछ, लेकिन टू के साथ कभी भी आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही लगाना. टू एट नहीं बोल सकते. और जेरेंड्स और पार्टिसिपल्स में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देती हूँ. जेरेंड जो है ना वो भी ing वर्ब ही होता है, लेकिन वो एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है. जैसे मैंने पहले बताया, स्विमिंग इज़ माई हॉबी, तो उसमें स्विमिंग जेरेंड है. पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स होते हैं जैसे इज़, एम, आर लगाकर जब हम लोग ing वर्ब्स यूज़ करते हैं. वॉज, वर या विल बी, शैल बी लगाकर टेंस मार्क करा के उसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं. ही इज़ स्विमिंग, आई वॉज स्विमिंग, तो वो कहलाते हैं पार्टिसिपल्स. टेंस आपको बहुत डिटेल टॉपिक है टेंस, तो या उसके टाइप्स प्लीज़ रिवाइज़ कर लो गाइस. 12 टाइप ऑफ टेंस होते हैं. उसको खाली आप एक्टिव वॉइस में मत रिवाइज़ करना क्योंकि टेंस पैसिव वॉइस का भी वो पूछते हैं. तो पैसिव वॉइस में 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस होता है. प्लीज़ गो थ्रू देम.
उसके बाद आपको फ्रेजल वर्ब्स हैं, मे बी यू कैन कीप इट ऑन द बैक स्टैक एज ऑफ नाउ, बिकॉज लास्ट मिनट रिविजन में आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, कुछ आपको स्ट्राइक हो जाएगा उस टाइम में, तो वो अटेम्प्ट कर देना। प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, आई, वी, यू, शी, ही, वैसे सब। और सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का। ओके, तो सब्जेक्टिव केस कौन से हैं पता है? जो भी आप सेंटेंस को बिगिन करके एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको ही नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। और एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हम ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज़ करते हैं। आई का क्या बन जाता है? मी, ही टोल्ड मी, ही सॉ हर, ही टोल्ड हिम। जो भी हम वर्ब के बाद लगाते हैं वो प्रोनाउंस हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस गाइस। अब होते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये कैसे होते हैं? हिम सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ वाले। लेकिन देम सेल्फ कभी नहीं होता गाइस, क्योंकि देम प्लूरल होता है तो उसमें देम सेल्फ होता है। योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। अगर एक ही बंदा है तो योर सेल्फ होगा, हम बहुत लोगों से बात कर रहे हैं तो वो योर सेल्फ होगा। ओके गाइस, तो फिर अगला पॉइंट है आपका एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत डिटेल में करना चाहिए। 2 या 3 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए यूजुअली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आते हैं। एडवर्ब्स, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज बिटवीन एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। एडवर्ब्स हमेशा वर्ब्स को ही क्वालिफाई करते हैं। मोस्टली उसका ज़्यादा टाइप्स नहीं पूछा जाता गाइस, फिर भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम वगैरह को आइडेंटिफाई करोगे तो आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज मार्क करने में बहुत आसानी होगी। जो कि क्लॉसेस में से हमेशा आता है, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाइफर्केट करने के लिए आता ही आता है, तो प्लीज़ उसको रिवाइज कर लीजिए। फिर प्रपोजिशंस, इन, ऑन, अबाउ, ये सब जो वर्ड्स हैं ना वो सब प्रपोजिशंस कहलाते हैं। कंजंक्शंस जो कि जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शंस है, एंड, और, बट। कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उसके कॉम्पाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, एंड, और, ऐसे। और कुछ कॉम्पाउंड कंजंक्शंस भी होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इससे सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, वो रिवाइज कर लीजिएगा। इंटरजेक्शंस ज़्यादा नहीं आते, कभी आइडेंटिफाई करने को आ गए तो आ गए। डिटरमाइनर्स में आर्टिकल्स का मैंने सिंगुलर और प्लूरल का आपको रूल बताया है कुछ देर पहले। और डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो है ना गाइस वो है दिस, दैट, दोस एंड दोस। क्वांटिफायर्स जो है ना, दिस इज जस्ट लाइक एनीथिंग दैट कैन कम बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन विच कैन टेल यू मोर अबाउट इट, about the quantity. Okay, so that is called quantifier. They can be numeral adjectives, they can be of number, they can be of quantity, some, any. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, 3 टाइप के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होते हैं गाइस। इसमें भी एक होता है अनलिमिटेड, एक होता है लिमिटेड। ठीक है, जो लिमिटेड होता है उसमें वन ऑफ नहीं होता, वन ऑफ होता है। जैसे हम बोलते हैं जैक इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ इन द क्लास, तो उसमें हम उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं, तो वन ऑफ लगाकर हम ये बताना चाहते हैं कि वो इकलौता अच्छा लड़का नहीं है। ठीक है, तो जब वन ऑफ होता है ना सुपरलेटिव डिग्री में, तो वेरी फ्यू से उसका पॉजिटिव डिग्री चालू होता है, वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज गुड एज जैक। ओके, और उसी का जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें मोस्ट या मैनी लगता है, जैक इज़ बेटर दैन मोस्ट और मैनी बॉयज़ ऑफ हिज क्लास। ओके, और अगर जो अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, वो अनरेस्ट्रिक्टेड है गाइस, नॉट अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड होता है ना, उसमें द होता है सीधा, वन ऑफ द नहीं, द होता है, जैक इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। उसका आप अगर पॉजिटिव डिग्री में कंपेयर करोगे तो कन्वर्ट करोगे तो नो अदर से चालू होता है, नो अदर बॉय इन द क्लास इज़ एज गुड एज जैक। अब अगर उसको कंपैरेटिव में करना है तो जैक इज़ बेटर दैन, बेटर होता है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर दैन मोस्ट और मैनी अदर बॉयज़ इन हिज क्लास। तो इस नटशेल में इस एक एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ समझकर आगे कर सकते हो। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से चालू होता है, तो कभी कभी अंडरलाइन करने को आते हैं। क्लॉसेस में हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको मार्क करके उसका टाइप बताने आता है, और वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गाइस। अगर एंड और बट वगैरह से अगर वो ज्वाइन हो रहा हो ना तो दोनों ही मेन क्लॉज होंगे, तो उसको आप 2 क्लॉज, यानी ऐसे अगर होता है ना, आई वेंट टू द स्कूल एंड आई मेट द टीचर,
आई वेंट टू द स्कूल भी मेन क्लॉज है, आई मेट द टीचर भी मेन क्लॉज है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्लियर समझ में आ रहा है। ओके अगर मैं बोलूँगी आफ्टर रीचिंग द स्कूल आई मेट माई टीचर, तो उसमें जो आफ्टर रीचिंग द स्कूल हो गया ना, वो जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि वो अकेले कोई मीनिंग नहीं बनाता गाइस। दूसरा वाला जो है आई मेट माई टीचर, वो मेन क्लॉज है। ओके तो ऐसे आइडेंटिफाई करना सीख लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता है कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब लगाते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजुअली पूछा जाता है। द डॉग होगा सिंगुलर तो बाग्स आएगा, लेकिन द डॉग्स हो जाएगा तो बाग आएगा। वो प्रोसेस पे मेनली आपका क्वेश्चन बेस्ड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आप लास्ट मोमेंट में ज़्यादा नहीं ट्राई कर पाओगे, लेकिन देखो अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव करने को बोला गया ना, मीनिंग मत चेंज करना, तो एंटोनिम्स यूज़ करना है। ही इज़ अ ब्रेव बॉय अगर पूछा है, उसको नेगेटिव बनाना है तो ही इज़ नॉट अ कवर्ड बॉय ऐसे लिखना है। ओके ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ नॉट अ बैड बॉय। दैट्स द सिंपल फंडा फॉर दैट गाइस, नेगेटिव से पॉजिटिव करने का। तो इसके भी कुछ रूल्स है। एवरीबडी नोबडी बन जाता है, ऑलवेज नेवर बन जाता है, नो वन का एवरीवन बन जाता है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जो आप रिवाइज कर लीजिएगा। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स। होमोनिम्स होते हैं वर्ड्स हैविंग different meanings. Homonyms are words which have different spellings but the same meaning. सॉरी, homophones हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है, स्पेलिंग अलग अलग होता है। तो उस पर कभी कभी पूछते हैं कि इसके अलग अलग मीनिंग के साथ आप वॉच, सपोज आपको वॉच दे दिया, तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। ऐसा वर्ब वॉच का आप क्या बनोगे? आई वॉच टीवी एवरी डे एंड माई वॉच इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम लंडन, दैट इज़ यूज्ड एज अ नाउन। ऐसा आता है क्वेश्चन। फिर फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, हाइपरबली, यूफेमिज्म, एंटीथेसिस, आयरनी, पन, ओनोमेटोपिया, एलिट्रेशन, कंसोनेंस एक्सेट्रा में से मेन वाले मैं आपको बताती हूँ। सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, और उसके बाद हाइपरबली, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है गाइस। सिमिली में आपको एस एंड लाइक यूज़ करके कंपैरिजन दिया होगा। ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। मेटाफर में ही फॉट एज अ लायन इन द बैटल फील्ड अगर बोल दिए तो वो मेटाफर है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट यूजिंग एस एंड लाइक। ठीक है। ओनोमेटोपिया में साउंड वर्ड्स होंगे आपको। पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन क्वालिटी दिया गया होगा नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए। द स्टार्स पीप्ड आउट फ्रॉम द स्काई, तो पीपिंग आउट ह्यूमन क्वालिटी है, वो स्टार्स को पास ऑन हो गया है। दूसरा ओनोमेटोपिया में साउंड वर्ड होंगे, जैसे ट्रिंग ट्रिंग रैंग द बेल, नहीं तो द विस्परिंग ऑफ द लिप्स, ऐसा कुछ वर्ड जो होगा जो साउंड को डिनोट करेगा। यूफेमिज्म ये होता है कि एक हार्श फैक्ट को ना आप जेंटली बताते हो, जैसे कि डेथ लेड इट्स आईसी हैंड्स ऑन हिम, वो मर गया डायरेक्ट ना बोल के हम उसको जेंटली बताते हैं वो। ठीक है। एंटीथीसिस में होता है ऐसा कि ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ होते हैं एक ही लाइन में। ही वॉज हैप्पी एंड हिज वाइफ वॉज सैड, अगर ऐसा बोलेंगे ना तो एक ही लाइन में अगर होगा तो वह एंटीथीसिस उसका फिगर ऑफ स्पीच होगा। हाइपरबली ओवर एक्सैजरेशन होता है, जैसे मैंने बोल दिया योर आइज़ कैन लाइट अप द डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड, तो सच में थोड़ी मेरे आइज़ अंडरवर्ल्ड में जाके लाइट अप कर देंगे, तो वो होता है ओवर एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट। Alliteration is the repetition of the sounds. Sounds guys, not the spellings. Okay, www व साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो। फ साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन एक जगह अगर एफ से स्पेलिंग चालू हो रहा है, एक जगह पीएच से, तो भी वो एलिट्रेशन होता है। ओके, सो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स तो लास्ट मिनट में हो नहीं पाएगा। आप पिछले साल जो पोम आया था, कौन सा था वो? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर आया था मोस्ट प्रॉबली। नहीं यार, आप लोग ना चेक कर लो, लास्ट ईयर के पेपर में चेक कर लो, जो पोम आए थे वो मत करना, बाकी सबका क्रिटिकल अप्रिशिएशन कर लेना। वैसे सबका ही कर लोगे तो बहुत आसान है। आप 21 का बुक निकालो, 8 पोम्स हैं, 8 पोम्स के आप कम से कम फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लो, टाइटल कर लो, ऑथर कर लो, थोड़े फिगर ऑफ स्पीच कर लो, राइम स्कीम कर लो गाइस। ओके, छोटे छोटे पॉइंट फॉर्मेट में भी 21 में आपके सारे दिए हुए हैं, तो वो आप काइंडली कर लीजिएगा, ऐसे दिए हुए हैं ये देखिए। इनको आप लास्ट मिनट में रिवाइज़ करेंगे, बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन तो आप खुद से ही थोड़ा समझ के कर लेंगे। राइटिंग स्किल्स,
में नॉन वर्बल और वर्बल ऐसे दो पार्ट आते हैं। एक में नॉन वर्बल में आपको सपोज़ एक ऐसा टाइप आता है गाइस जिसमें आपको कोई टेबल वगैरह दिया रहेगा और उस पर आपको लिखना होगा पैराग्राफ बना के। कभी कभी पाई डायग्राम भी बनाने को आ जाता है, तो अपने ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी कैरी करिएगा गाइस। सो दैट्स ऑल आई वांट टू टेल, बिकॉज 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है। वैसे अनएंडिंग मैं आपको बता सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ ABT स्मार्ट एडू सर्विसेज।